Very good morning, beta. Today we will start the equation of plane, formulas for equation of plane and exercise 11.3. है ना? In exercise 11.3, equation of planes are there in different conditions. So firstly, I am writing here formulas for the equation of plane. So first formula for equation of plane is equation of plane whose perpendicular distance from origin is d and normal unit vector is n cap, which is from the origin, है ना? Normal unit vector n cap is the unit vector along ON, है ना? ON is the perpendicular drawn from origin to the given plane. So equation of plane whose perpendicular distance from origin is d and normal unit vector is n. क्या है? r dot n cap equals to d. This is vector form. This is vector form, बेटा. ठीक है? Equation of plane whose perpendicular distance from origin is d and normal unit vector is n cap. Then formula is r dot n equals to d. वेक्टर फॉर्म होगी बेटा. कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम समझें तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू d. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. ओके, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म. क्लियर बेटा? सेकेंड फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point and normal to a given vector. Normal to a given vector n. Vector n, vector. ठीक है? Not, this is not the unit vector. This is only vector. Formula is r minus a dot n equal to 0. This is called the vector form, where a is the position vector of the given point and n is the normal vector. Its Cartesian form will be a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0, where a, b, c are the dr's of normal to the plane. कहाँ से मिलेंगे? वेक्टर n में से. and x1 y1 z1 is the point. ठीक है बेटा? Come to the next formula. Equation of plane passing through three non-collinear points. Passing through three non-collinear points. Non-collinear points समझते हैं बेटा? वो पॉइंट जो एक लाइन में ना आ रहे हो, है ना? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इज r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a equal to 0. r minus a dot b minus a cross c minus a, where a, b, c are the position vector of the given points. Clear? This is called the vector form, है ना? वेक्टर फॉर्म में बेटे आपकी. कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे? देखिए, x माइनस x1 y माइनस y1
z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 equal to 0. This is called the Cartesian form. क्या कहलाएगी? कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी बेटे. ठीक है. Is it clear to everyone? Come to the next formula. Formula number 4. Equation of plane in general form. What is the general form of equation of plane? Ax plus by plus cz equal to d, where a, b, c are drs of normal to the plane, है ना, where a, b, c are the drs of normal to the plane. Formula number 5, equation of plane in intercept form. ये intercept form क्या है बेटा? If a plane cuts x-axis at a intercept and y-axis at b intercept and z-axis at c intercept, it means a plane intersecting x-axis at point a, 0, 0, at y-axis 0, b, 0 and at z-axis 0, 0, c. Then equation of plane will be x over a plus y over b plus z over c equal to 1. This is called the intercept form of equation of plane. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हो गए. अब देखिए दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनको ज़रा गौर करेंगे, इनमें थोड़ा डिफरेंस बता दूँ मैं. Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो में सिंपल दी हुई रहेगी कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, है ना. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है या इस फॉर्म में दी हुई है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा जो भी x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं हम क्या करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे. अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन है. अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं आता है तब हम कहेंगे कि जनरल फॉर्म दी हुई है ना. क्यों? क्योंकि वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज 1, है ना. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है. इसलिए अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम अगर 1 आ जाए तो ये फॉर्म दी हुई है एल एक्स वाली, और अगर इनका सम 1 नहीं आता है तब जनरल फॉर्म गिवन है ना. कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6. Equation of plane passing through the line of intersection of two planes. Line of intersection of two planes. R dot n1 equals to d1 and R dot n2 equal to d2 is उस प्लेन का इक्वेशन जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन R dot n1 equals to d1 and R dot n2 equals to d2. क्या होगा? R dot n1 प्लस लैम्डा इंटू इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2. ये बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. बस वहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई होगी. विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म. ठीक है. Similarly, Cartesian form,
if equation of planes are in Cartesian form. ठीक, if equation of plane are in Cartesian form, it means क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, इसमें वन लगाते हैं, वन 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 है ना, फर्स्ट प्लेन है, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू डी टू. Then equation of plane passing through the line of intersection, equation of plane, equation of required plane will be ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस लेमडा इंटू ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू डी वन प्लस लेमडा डी टू, डी वन प्लस लेमडा डी टू. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको मेन फॉर्मूले आपको बता दिए. नाउ कॉप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, इट मीन्स द कंडीशन फॉर विच द टू प्लेन्स विल बी कॉप्लेनर, वो कंडीशन जिसके लिए दो प्लेन कॉप्लेनर होंगे. फॉर्मूला नंबर 7, टू लाइंस आर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1, एंड यहाँ बेटा ये चेंज कर लें ये तो सही है, r डॉट r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा ना करके म्यू कर लें, म्यू b2 विल बी कॉप्लेनर. कॉप्लेनर समझते हैं? कॉप्लेनर मतलब सेम प्लेन में लाई करें. इफ क्या कंडीशन, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इज जीरो. इफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 जीरो. बेटा ये इनके बीच की SD का फॉर्मूला था शायद, उसमें नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और था. मतलब अगर शॉर्टर डिस्टेंस दो लाइन के बीच की जीरो है तो लाइंस विल बी कॉप्लेनर. ठीक है बेटा, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में है ना, और अगर इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में, इफ इक्वेशन ऑफ लाइंस आर इन कार्टेशियन फॉर्म, ये फॉर्मूला बना देते हैं. नेक्स्ट, लाइंस, टू लाइंस x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, एंड लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 विल बी कॉप्लेनर. वही सेम प्लेन वाली बात चल रही है. यहाँ पर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में था ये कंडीशन होती है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 शुड बी जीरो. क्लियर बेटा? अब आ जाइए आगे. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है बेटा, ये डिलीटेड है. एंगल बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिलीटेड है. अब हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले पर, फॉर्मूला नंबर 8. अब ये फॉर्मूला नंबर 8 क्या है, सुनेंगे जरा ध्यान से इसको भी. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, डिस्टेंस ऑफ a point from
अ प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कह सकते हैं x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन r डॉट n इक्वल्स टू d, ठीक है। इज क्या डिस्टेंस हो जाएगी, इसको अगर मैं p से रिप्रेजेंट कर दूं तो फॉर्मूला होगा a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है। ये vector a will be the position vector of the given point, n vector is the normal vector and d is the perpendicular distance of origin to that plane, ठीक है ना। क्लियर, ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म और देखें, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि p इक्वल्स टू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर बेटा, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। एक फॉर्मूला और है बेटा, यहीं से देख लीजिए, अगर पॉइंट 0 0 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, फाइनली 0। यहाँ मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, नया फॉर्मूला नहीं है वैसे, लेकिन स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन या डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं ना। पॉइंट हटा दे बेटा यहाँ से, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन लिखते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन लिखते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन r डॉट n इक्वल्स टू d। क्या डिस्टेंस हो जाएगी, फॉर्मूला विल बी n मैग्नीट्यूड ऑफ n, सॉरी d रह जाएगा बेटा, d सिर्फ d रह जाएगा, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में ये a 0 है, 0 हो जाएगा तो ये a डॉट n 0 हो जाएगा, सिर्फ d रह जाएगा, d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको लर्न करेंगे और आगे आपका बेटा कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बचता है जो हमने ना कराया हो आपको। ठीक है, तो ये टोटल आपके फॉर्मूले हो गए बेटा। ठीक है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, z इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डिसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो z इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इसको बेटा कंपेयर करें। मैंने आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी, एक तो Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d, और एक बताई थी Ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। अब इन दोनों में से कौन सी फॉर्म है उसको देखने के लिए मैंने बताया था, इफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, है ना, देन दिस इज द इक्वेशन, है ना, अदरवाइज दिस विल बी द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई तो है नहीं, z का जो कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा ये कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d। तो डिसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएंगे बेटा, 0, 0, 1, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी 2 यूनिट्स। क्लियर बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट वाला देख लें, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देख लें। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर चेक करें हम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो
कौन सी फॉर्म दी हुई है बेटा इस बार, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म दी हुई है। तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, अगर ए को हम डिवाइड कर दें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल बन जाएगा। ऐसे ही बी को डिवाइड कर दें इसी से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो एम बन जाएगा। और सी को डिवाइड कर दें तो एन बन जाएगा। और जब इस डी को डिवाइड करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या करना होगा, अगर कंडीशन दूसरी वाली है, मतलब सेकेंड इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म में, तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग इट विद किससे, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट 3 से, टू बोथ साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर दें। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3z इक्वल्स टू, इधर भी 1 है तो 1 बाई अंडर रूट 3। नाउ ऑन कंपेयरिंग इट विद lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d, इससे कंपेयर कर लें क्योंकि अब ये डिसीज वाली फॉर्म हो गई है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो डिसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन विल बी, डिसीज कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ से, डिसीज हो जाएंगे 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 एंड 1 बाई रूट 3। क्लियर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी कितना, ये 1 बाई अंडर रूट 3 यूनिट्स। ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा समझ लें। इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन इन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, देन डायरेक्टली एल एम एन जो होंगे दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डी विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट प्लेन। लेकिन अगर ये फॉर्म नहीं है, पता कैसे चलेगा मैं ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, उसके लिए मैंने आपको बताया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चेक करना है 1 आया या नहीं आया। अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1 देन दिस इज द फॉर्म। और अगर इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है तब जनरल फॉर्म दी हुई है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और डिवाइड करने के बाद वो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी जनरल फॉर्म इसमें डिसीज वाली फॉर्म में, है ना। और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम वहाँ से डिसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ले सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ले सकते हैं। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यही कर लें, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 7 यूनिट्स, ठीक। एंड नॉर्मल वेक्टर इज दिस, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है तो मतलब वेक्टर एन दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो बेटा यहाँ से अगर हम निकालना चाहें नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो कितना हो जाएगा, ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर कर दी, चलिए 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप ओवर अंडर रूट में कितना आएगा, 9 प्लस 25 प्लस 36 70 हो जाएगा। तो 3 बाई अंडर रूट 70 आई कैप, 5 बाई अंडर रूट 70 जी कैप माइनस 6 बाई अंडर रूट 70 की कैप। पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है ओरिजिन से और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल लिया। और इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी आर डॉट एन कितना, 3 अपॉन अंडर रूट 70 आई कैप, 5 बाई अंडर रूट 70 जी कैप माइनस 6 बाई अंडर रूट 70 के कैप इक्वल्स टू डी 7।
दिस इज द आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई थी ओरिजिन से और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, पहले नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड किया, जो नॉर्मल वेक्टर वो अपन उसका मैग्नीट्यूड करके, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दिया। ये आंसर हो गया, इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है हमें। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो जाता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।